आदमी आते थे, आज सारी विदेशी ताकतें हमारे मोदी जी के आगे घिस जाती है। Sir, it's a very auspicious occasion today that the two big personalities, hero of the world's judiciary and the political hero of the world, are sitting together on the dais. $500 वर्षों तक झेल रहे करोड़ों भारतीयों को मानसिक पीड़ा से उबार कर हमारे रामलला को पुनः भव्य राजमहल सा मंदिर बनवाकर देश में राम राज्य की पुनर्स्थापना करने वाले युग पुरुष, विश्व के सबसे लोकप्रिय, प्रभावशाली और शक्तिशाली राजनेता, विश्व भर में भारत का मान सम्मान और शान बढ़ाने वाले ऐतिहासिक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के 25 लाख वकीलों और 140 करोड़ जनता का कोटिशः प्रणाम और नमस्कार, आभार। सर, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, भगवान आपके नेतृत्व का लाभ इस देश को प्रदान कराते रहें। आने वाले समय में आपका नेतृत्व, हमारा भारत और शक्तिमान बने आपके नेतृत्व में, यही कामना है। जय भारत। Thank you, sir. Moving ahead, I would now like to request Shri R. Venkatramani, Learned Attorney General for India, to say a few words on this historic occasion. Honorable the Prime Minister of India, Honorable the Chief Justice, my respectful regards through the galaxy of gathering here today. My heart jumps with joy on being part of this occasion. And it's a moment of great pride and pleasure to be part of and even celebrating 75 years of the Supreme Court of India. On the Republic Day, we saw the demonstration of the commitment of the nation to women's empowerment. In a significant step, the Supreme Court, playing its own part, has designated a number of women lawyers as senior counsel. These are not merely symbolic. Steps such as this in the nation, in the legal profession, and in the court shows momentous transition into the world of equality. Constitutional values and ideas emerge from social and political mobilizations. While courts do not lead such mobilization, they are an essential part of giving new and distinctive articulations. It's a matter of great pride, too, for every member of the legal fraternity to appreciate and stand by some of the most remarkable constitutional and jurisprudential doctrines and values the Supreme Court has not only articulated, but they ensured their entrenchment in the course of 70 years of its history. It goes to the credit of the Supreme Court and the High Courts that in the early years of the court, women and men of ordinary social position reached the courts and their causes came to be adjudicated. Today, the access to justice expands is a legal universe of its own. Unlike ordinary legislation, the Constitution is a document to be celebrated every day. A day in the life of a citizen is marked by several interventions as well as facilitations. So it is in the life of a nation that we move into an interconnected world. Every day will be marked by interventions and challenges. The citizens look up to the governance at the nearest level to be able to conduct their and manage one's transactions with ease and comfort. The Constitution is a document of guarantees and freedoms, and the codification of power may seem to be a distant document for everyday life, but it is not. As we move from the index of one day to an index of larger periods, we begin to measure the impact of law in our life. This is where the chronicles of the life of a nation and what we call progress in the arrangement of the affairs of the nation becomes important. Compared to the long history of more than 200 years of the United States of America, with the birth of its Constitution in 1789, and compared to the constitutional history of England from the days of Magna Carta, or even compared to the constitutional history of some of the European nations, 75 years of our constitutional history may seem to be relatively small. But if one looks at what one may describe
as the features of the Constitution and their impact on the lives of the people, we can say without being contradicted that 75 years of Indian constitutional history is as good as and as sound as comparable to any constitutional history. When we are assembled to talk about 75 years of the Constitution, we are talking about the transformation of the Constitution to the judicial process, and particularly to the Supreme Court. It's not possible to talk about the transformation in the Constitution without talking about the court. For constitutional scholars who talk in terms of constitutionalism, constitutional history is confined to or drawn in terms of performance by and functioning by institutions of governance, and there's also a shaping of the Constitution by judicial institutions. While this may be, to some extent, good focus, an equally important facet is the abiding faith of the people and the people's participation in the democratic process, and the pledge they have extended to the idea of a nation, its integrity, and their nexus and deliverance for the lives of the people. The Constitution, therefore, works when there is a confluence of citizens and the institutions, and when they stand together and the one does not fail the other. The endurance of the Constitution is the most important feature of the Constitution. The endurance is a contribution of the legislatures and the governance institution and the judicial institutions. This contribution is a dynamic balance, political morality and governance accountability, about which Baba Sahib Ambedkar ever emphasized in his writings, are twin driving forces that can keep democracy vibrant and alive. So also the unfettered roles of the courts in ever being ready to explore the contours of citizens' rights and governance obligations, without, of course, sitting heavily on governance responsibility and governance initiatives. What governance does by right choices generates faith in democracy. What courts do by ensuring against wrongs of governments generates confidence in the Constitution. 75 years of history of the Supreme Court is a rich treasure house of law and jurisprudence. The contribution of the Supreme Court can be said to be unique in the sense that it has comprehended the diverse roles of the courts, but all tuned to standing by the sides of citizens in ever being vigilant in their protection and promotion. While we have borrowed from elsewhere, we have our own demonstrations of native genius. The permeation of the native jurisprudential genius as part of rule of law in the country has to be measured on its own forms as a post-colonial narrative. The history of constitutional litigation in the court shows how it provided a window and option for ordinary citizens to occupy spaces hitherto held by the elite and the well-endowed. The promises of an egalitarian state where equal regard for all will be the governing mantra, while seemed far removed from citizens' participation at the time of the advent of the Constitution, got translated into an accessible pathway solely by reasons of the Supreme Court opening up its doors to all causes and concerns of citizens. To assess the state of constitutional adjudication, which happens in the highest court today, we can look at what was stated in the year 1951 by the then Chief Minister of the state of Hyderabad, unquote. An extraordinary tendency has been noticed recently for all sorts of people to take up cases up to the High Court citing provisions in the Constitution relating to what are termed fundamental rights. A woman has asked for a stay of an order served on her by a police asking her to leave the state for non-possession of a valid permit, while two displaced teachers were asked to pass a test of regional language have prayed for the issue of writ of mandamus, questioning the validity of the order. I quote, "This statement was a very narrow view of the role of the courts and citizens' access to justice. While there could be several points of view on the expansion of the role of the courts in dealing with the facets of governance, hitherto away from scrutiny by courts, it is the unalloyed assertion of independence of judiciary that has added richness and strength to the constitutional consciousness of the citizens of Bharat. Satya and Dharma are intertwined. They reinforce each other. Bharat will continue to symbolize both of these values of civilization. We pledge to be part of this constitutional consciousness. Jai Bharat. Thank you so much, sir, for this insightful address, where your reflections on the Supreme Court's role and contributions were so beautifully woven together. अब
मैं विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि वो इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण को संबोधित करें। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणत करने हेतु पूर्ण मनोयोग से लगे युग नायक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ जी, जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस श्री B.R. गवई साहब, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, श्री R. वेंकटरमणी जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, श्री मनन कुमार मिश्रा जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर आदिश अग्रवाला, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तथा उपस्थित माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशगण, विभिन्न हाई कोर्ट्स के माननीय मुख्य न्यायाधीशगण, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस व भूटान के मुख्य न्यायाधीश, समस्त अधिवक्तागण, मीडिया बंधु, नारी शक्ति एवं समस्त श्रोतागण, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी और विधि के सभी ज्ञातागण, ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का क्षण है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय की यात्रा के 75 वर्ष के पड़ाव पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्थान व संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय के अतीत को याद करके वर्तमान में प्रेरणा लेने व बेहतर भविष्य की कार्य योजना पर चिंतन, मनन, मंथन करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। लगभग 5000 वर्ष के वैभवशाली इतिहास तथा लोकतंत्र की जननी भारत की विरासत के साथ स्वतंत्र भारत में न्यायिक व्यवस्था के सिरमौर सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मात्र 75 सालों की यात्रा नहीं है, बल्कि न्याय प्रणाली में भारत की सिविलाइजेशन परंपराओं तथा दीर्घकाल में सिंचित कलेक्टिव विजडम को भी सेलिब्रेट करने का अवसर है। न्याय व धर्म के सिद्धांत भारतीय सभ्यता में गहनता से समाहित है। सभ्यता के इस लोकाचार में जब जब नैतिकता के नेचुरल फ्लो में विकृति का आविर्भाव हुआ, तब तब कोर्स करेक्शन करने के हेतु न्यायिक तंत्र ने विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका निभाई तथा न्याय शास्त्र का विकास किया। भारतीय इतिहास में चाणक्य नीति, विदुर नीति, बृहस्पति सूत्र, वेदांत, उपनिषद, धर्मसूत्र, महाभारत, गीता इत्यादि में न्याय शास्त्र के शाश्वत सिद्धांतों तथा उनके माध्यम से बेहतर राष्ट्र, समाज, परिवार व इंडिविजुअल बनने की निरंतर सद प्रेरणा मिलती रही है। 300 BC ईसा पूर्व में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 3रे अध्याय में व्यवहार यानी दो या अन्य पार्टियों के मध्य लेन देन अथवा विवाद के संबंध में हमें वर्णन मिलता है। मध्यकाल व औपनिवेशिक काल में भारत में भी समयानुकूल न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन होते रहे। स्वतंत्र भारत के निर्माण में लीगल फ्रेटर्निटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल साहब, वीर सावरकर जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि ने भारत की नींव को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। आजाद भारत में महापुरुषों ने जन आकांक्षाओं को समाहित करने वाले संविधान के रूप में पवित्र प्रेरणा पुंज देकर तथा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सुदृढ़ करने का एक मंत्र दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को पहली सिटिंग के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने कार्य प्रारंभ कर दिया। औपनिवेशिक कालखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई देश की एकता व स्वतंत्रता के लिए रही। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के चलते हुए बंटवारे के कारण हमें एकता को पार्शियली कंप्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन स्वतंत्रता को बरकरार रखने में राष्ट्र ने बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। भारतीय संविधान की छत्रछाया में
स्वतंत्रता के इन्हीं मानकों को प्रगाढ़ करने की दिशा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर अपने निर्णयों से संवैधानिक मूल्यों को प्रगाढ़ किया है। इस यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनेक उल्लेखनीय माइलस्टोन क्रॉस किए हैं, जिनमें कुछ को मैं संक्षिप्त जिक्र करना चाहूँगा। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के सिद्धांत की व्याख्या की। 1980 के दशक में जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर की अगुवाई में एक पोस्ट कार्ड को जनहित याचिका का रूप माना गया। MC मेहता केस के परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के निर्माण को प्रेरित किया। इंदिरा साहनी केस में OBC के 27% आरक्षण को संवैधानिक ठहराया। विशाखा केस में वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस को महत्वपूर्ण आधारशिला रखी गई। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के राम मंदिर जजमेंट को भारत की ट्रस्ट विद डिविनिटी की यात्रा में मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। 75 वर्ष पहले 8 न्यायाधीशों से शुरू हुई इस यात्रा में अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अक्टूबर 1989 में जस्टिस फातिमा बीबी ने पहली महिला जज के रूप में पदभार ग्रहण किया। आज नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपना प्रभावशाली योगदान देकर देश का नाम रोशन कर रही है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इसी श्रृंखला में उच्चतम न्यायालय में भी वर्तमान में 3 महिला जज अपनी सेवाएं दे रही है। आज इस देश में अमृतकाल में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प ले चुका है। तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से न्यायपालिका के साथ सहयोगात्मक रूप से बेहतर जस्टिस इकोसिस्टम बनाने हेतु हम प्रतिबद्ध है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि पिछले एक दशक में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देकर एक सिटीजन सेंट्रिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्न लीगल सिस्टम को बनाने की दिशा ठोस आधार के साथ प्रभावशाली प्रगति की है। जुडिशरी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से डिजिटली जुडिशियल प्रोसीडिंग करने में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 2.92 करोड़ वर्चुअल सुनवाई हुई। इनमें से 4,82,941 सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई। यह एक रिकॉर्ड है। अभी हाल में स्वीकृत ई कोड फेज 3 के तहत डिजिटल पेपरलेस व स्मार्ट कोर्स स्थापित करके तथा यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोर्ट, लिटिगेंट्स व अन्य स्टेक होल्डर को जोड़कर नागरिकों अदालतों को करीब लाने का सार्थक प्रयास किया गया है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार द्वारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट क्रियान्वित की जा रही है। इसके माध्यम से कोर्ट हॉल भी बने हैं, जुडिशियल ऑफिसर के लिए रेजिडेंशियल यूनिट भी बनी है और ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किए गए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड आज 34.35 करोड़ केस व 23.80 करोड़ ऑर्डर जजमेंट की जानकारी सिंगल क्लिक पर उपलब्ध करवा रहा है। अंतिम छोर पर गरीब नागरिकों को लीगल सर्विस उपलब्ध कराने हेतु कानूनी साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रमों हेतु सेंट्रल स्कीम दिशा को भी हम संचालित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टेलीला प्रोग्राम के द्वारा 67 लाख से अधिक नागरिकों को प्री लिटिगेशन एडवाइस दी जा चुकी है। इसी तरह से भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूर्व होने पर वर्ष भर चलने वाले अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का शुभारंभ डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा न्याय सेतु लॉन्च किया गया, जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा समावेशी रूप में कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह व सहायता प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं बने, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भाषिनी टूल्स के साथ साझेदारी की गई है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की वकालत के शताब्दी वर्ष के दौरान संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 के अवसर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकील मुद्रा में उनकी 7 फुट की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें पूर्वज अधिवक्ता के रूप में याद किया गया। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, ताकि न्याय के इस मंदिर में स्थापित वकील की वेशभूषा में बाबा साहब की ये प्रतिमा संविधान प्रदत्त मूल्यों पर चलने के लिए निरंतर प्रेरणा देने के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास करवाती रहे। आज 21वीं सदी के कालखंड में वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु पूरा विश्व
भारत की ओर देख रहा है, भारत में अपना मित्र खोज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में भारतीय न्यायिक प्रणाली की इस यात्रा में देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली मानक स्थापित कर रहा है। आज विश्व भर के 40 से अधिक देशों के उच्चतम न्यायालयों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करके अपने निर्णय लिए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में न्याय की पहुंच को बढ़ाने के लिए 27 से 28 नवंबर 2023 को नालसा द्वारा यूएनडीपी, यूनिसेफ, इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन के सहयोग से फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड, स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस इन ग्लोबल साउथ का सफल आयोजन किया है। मैं इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के 4 जो जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस आर.एस. पाठक, जस्टिस नागेंद्र सिंह, जस्टिस सर बेनेगल राव, जो इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जो कि विश्व में भारतीय न्यायपालिका की स्वच्छ, निष्पक्षता और प्रभावशाली छवि का परिचायक है। एक तरफ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से विकास यात्रा पर गतिमान है, वहीं दूसरी ओर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से कानूनी मध्यस्थता का हब बनने भारत जा रहा है। मैं इस अवसर पर कानून और न्याय मंत्रालय ने जो विजन 2047 के रूप में जस्टिस फॉर ऑल का लक्ष्य प्रस्तावित किया है, इसके अंतर्गत स्पीडी, अफोर्डेबल एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिटीजन सेंटरिंग डोर स्टेप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के द्वारा न्याय की सुगम पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। आज अमृतकाल के अंदर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत देश आत्मनिर्भर होकर 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मजबूत, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के आधार स्तंभ के रूप में सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। न्याय का मंदिर बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा, न्याय का मंदिर बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा, संविधान का रक्षक बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा। आज अमृत वर्ष की बस यही शुभकामना है, देश का गौरव बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। May I now request the Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, to please share his thoughts with us on this momentous occasion. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, my colleague judges of the Supreme Court of India, Chief Justice Obaidul Hassan, Chief Justice of Bangladesh, Justice Kinle Dorji, Judge Supreme Court of Bhutan, Chief Justice Bibi Rehana Mungli Gulbul, Chief Justice of Mauritius, Chief Justice Bishwambar Prasad Shrestha, Chief Justice of Nepal, Chief Justice Jayant Jayasuriya, Chief Justice of Sri Lanka, Chief Justices and Judges of the High Courts, former Chief Justices of India and Judges of the Supreme Court of India, Mr. R. Venkatramani, Attorney General for India, Mr. Tushar Mehta, Solicitor General of India, Mr. Manan Kumar Mishra, Chairman of the Bar Council of India, Dr. Adish C. Agarwal, President and Executive Committee of the Supreme Court Bar Association, President and members of the Supreme Court Advocates on Record Association, Vice Chancellors of the National Law and other universities, members of the Bar, students, young and not so young, you're all students for our whole life, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today is a momentous occasion in the history of our nation. The Supreme Court of India marks the commencement of the Diamond Jubilee year of the moment of its inception on 28 January 1950. First and foremost, I thank the Honorable Prime Minister of India, who graciously agreed to be with us, address the audience, and launch the new initiatives of the Supreme Court of India. I also extend my heartfelt gratitude to my esteemed counterparts from